محمد کے اپنے کزن نے اس کو ڈنگ ڈونگ کر دیا. محمد کا چچا محمد کو ننگا کر کے اپنے بستر پہ لٹاتا تھا, کہتا محمد بہت نرم ہے. یار لکھا ہوا کوئی مومن کہے نہیں لکھا ہوا, میں دکھاتا ہوں لکھا محمد بہت نرم تھا, اس میں سے خوشبو بڑی آتی تھی. چچا ننگا کر کے اس کو اپنے بستر میں لٹا رہا ہے اپنی چادر میں, اور کہہ رہا ہے محمد بہت نرم ہے. کیا ساری رات کاڑے لمبے لوگ محمد کو چوتتے رہے, محمد چوتتا رہا, اور محمد کیا کہتا ہے, مجھے بہت وزنی فیل ہو رہا ہے اور درد ہو رہی ہے. یا اللہ, ابے یار یہ سب لکھا ہے, یہ سب لکھا ہے. دیکھو کون آیا بھائی, آیا ڈان آیا ڈان. یار کیونکہ اسلام کی دو چیزیں ایک ہے چھپا ہوا اسلام, ایک ہے سامنے والا اسلام. سامنے والا اسلام یہ ہے جو ملاز مفتی بولتے ہیں. دیکھیں کتاب پڑھنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. پرابلم یہ ہے آپ کتاب گفٹ بھی کر دو گے نا, قرآن کی کتاب گفٹ کر دو, پڑھے گا کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ یار پڑھ تو لو تمہیں پتہ لگے. اب ہوتا کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں یار اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں. اسکالرز منہ سے تو بہت اچھے ہیں, اسکالرز منہ سے تو کہتے ہیں اسلام از پیس, اسکالرز منہ سے تو کہتے ہیں وومن کے پاس ہے رائٹس. ابے امب کیا رائٹ ہے, ابے رائٹ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے عورت اور مرد سائیکل کے دو پہیے ہیں. ابے ڈنگر کہاں لکھا ہے؟ ماں اللہ جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ابے کہاں لکھا ہے؟ محمد کے اوپر ایک بڑھیا عورت کوڑا پھینکتی تھی. ابے کہاں لکھا ہے؟ محمد کے پاس ایک جوش بندہ تھا, وہ محمد کے گھر کے آگے ٹٹی کر دیتا تھا. محمد نے اسے کچھ نہیں کہا. ایک دن ٹٹی نہیں آئی تو محمد اس کے گھر گیا تیمارداری کرنے, وہ مسلمان ہو گیا. ابے کہاں لکھا ہے؟ تو کیا رائٹ ہے؟ ایک وہ چیز ہے جو بولی جاتی ہے, اور ایک وہ چیز ہے جو لکھی ہوئی ہے. اور ایک چیز میں آبزرو کرتا ہوں, یہ عربی میں ہے اور یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا کسی دوسری لینگویج کو. آئی مین یہ بڑا اسٹرینج ہے نا, کیسا ہو سکتا ہے یار محمد بارش ہوتے ہی جیسے ہی بارش ہوتی ہے ڈڈو نکلتے نا باہر, بارش میں ڈڈو باہر نکلتے ہیں نا, اسی طرح جیسے ہی بارش ہوتی تھی محمد ڈڈو کی طرح باہر نکلتا تھا, اپنے کپڑے اتار لیتا تھا. بھائی اس کی صرف اور صرف عربی میں لکھا ٹرانسلیشن کسی نے کی, میں کیا کروں, میں کیا کروں. اور لالا جی دیکھیں دعویٰ کیا ہے کہ حضور ایک کنواری عورت کی طرح شرمیلے تھے. یار یہ کون سی شرم و لحاظ ہے؟ میں بتا دوں اتنے شرمیلے تھے کہ محمد کھڑا ہے, پیچھے سے ایک بندہ آیا اور محمد کی قمیض کے اندر بڑھ گیا. یعنی اس آپ کی قمیضیں دیکھیں کیا ہوتی ہیں, جو عربی قمیضیں دیکھیے شولڈر سے لے کے ٹانگوں تک ہوتی ہے نا, تو بیچ میں کچھ نہیں ہوتا. پیچھے سے ایک بندہ آیا محمد کی قمیض کے اندر گھس گیا. محمد کو پوچھتا ہے محمد کہاں تک؟ محمد کہتا ہے پانی آنے تک. کیا پانی ڈھلکا ہے کوئی جس سے پانی آنا ہے؟ خود ہی سوچ لو پانی کہاں سے آنا ہے. محمد بول رہا ہے پانی کے آنے تک ہے. وہ کہتا ہے اچھا کہاں کون سا پانی؟ کہتا ہے نمکین پانی. اب خود ہی سوچو نمکین پانی نلکے میں سے نہیں نکلے گا نا بھائی. یہ ٹرانسلیشن کیوں نہیں ہے اس کی, کیوں نہیں ہے اس کی ٹرانسلیشن بھائی؟ یار مطلب وہ پورا میکسی میں گھس کے نمکین پانی تلاشتا تھا. ابے بندہ محمد کی قمیض کے اندر گھس گیا بھائی, پیچھے سے محمد کی قمیض میں گھس گیا بھائی. ابھی میں نے اپلوڈ کیا ہے سچ والا جی سے, میں نے عربی ساڑی پروا کے ٹرانسلیشن کروائی ہے, اور میں نے ابھی جو بارش میں محمد وہ میں نے ابھی اسٹریم ابھی ڈالی ہے, دیکھو جا کے. تمہیں پتہ ہے عربی کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کی, میں کیا کروں, میں دکھا رہا ہوں آپ کو. ابے یار ڈنگر پنا ہے یار, نہ انگلش میں ہے نہ اردو میں, کیا کریں. محمد کو بچپن میں محمد کے کزن نے ڈنگ ڈونگ کر مارا, کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. میں نے انگلش اسٹریم میں چلایا, دکھایا لوگوں کو, ابھی اردو میں بھی بناؤں گا. محمد کے اپنے کزن نے اس کو ڈنگ ڈونگ کر دیا. ٹھیک ہے, محمد کا چچا محمد کو ننگا کر کے اپنے بستر پہ لٹاتا تھا, کہتا محمد بہت نرم ہے. کیا ایڈم بھائی تم سے کون مومن بات کرنے آئے گا ہمارے یار لکھا ہوا کوئی مومن کہے نہیں لکھا ہوا, میں دکھاتا ہوں لکھا ہے. اما لکھا محمد بہت نرم تھا, اس میں سے خوشبو بڑی آتی تھی. چچا ننگا کر کے اس کو اپنے بستر میں لٹا رہا ہے اپنی چادر میں, اور کہہ رہا ہے محمد بہت نرم ہے. کیا مطلب نرم ہے, کہاں سے نرم ہے؟ ہیلو. اور لالا جی جاٹوں والا جاٹ ہاں جاٹ, ہم سوری رات
डांट मोहम्मद की सवारी करते अरे रहे। बस करो यार, यरकबून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी अरे यार सुनो रात। ना, थोड़ा सा कम करो, हम समझना चाहिए ना, कोई लड़की भी आपके साथ है। अबे दीदी जी इसलिए तो मैं कुछ और नहीं बोल रहा, सेंसर करके लफ्ज बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है यरकबून ये का तो मतलब होता है दीदी ये तो सवारी कर रहे थे, सवारी। सवारी बोला है। आप अरबी कोई में कितनी अरबी में तहजीब लिखे, का दायरा पकड़े हैं। या देखें अरबी में गूगल पे लिखे यरकबून अल निसा, यानी कि निसा कहते हैं औरत को, यरकबून अल निसा गूगल पे सर्च करें, आपको अरबी पोर्न साइट सारी की सारी खुल जाएंगी और कुछ नहीं खुलेगा। नहीं, मैंने आपका ना पूरा जो सचवाला जी के साथ आपने वीडियो किया था, मैंने वो पूरा देखा है, मैं वो नहीं कह रही हूँ। पर थोड़ा सा लाइक वो लग रहा है ना कि इतना, मतलब देखो हम कुछ नहीं कर सकते ना, ये लिखा हुआ है, इतना इतना खुद को वो शर्म आती है, बट लिखा हुआ किताब में क्या कर सकते हैं। हाँ तो वो सारी रात मोहम्मद, अब वो क्या सिस्टर सर कान बंद करें, कान बंद करें, नीचे कान बंद करें, ऐसे ऐसे कानों के अंदर मैं उंगलियां डालें, हाँ ठीक कानों है, के ठीक अंदर है, मैं उंगलियां हेडफोन डालें, नीचे, हाँ नीचे कर लें। सारी रात काले लंबे लोग मोहम्मद को चोदते रहे, मोहम्मद चुदता रहा, और सुबह उठ के क्या कहता है, जब सुबह का सूरज आया ना, मोहम्मद क्या कहता है, मुझे बहुत वजनी फील हो रहा है और दर्द हो रही है। या अल्लाह, अबे यार ये सब लिखा है, ये सब लिखा काले है। लाला जी काले वही ना, वो जो तुम बहुत डेंजर हो भाई। अफ्रीकन होते हैं, काले काले लंबे लंबे, और मतलब उनका सब कुछ मतलब बड़ा बड़े और एंड में क्या लिखा है, एंड में क्या लिखा है, एंड में लिखा है ये जिन थे, मोहम्मद इंसानों को छोड़ जिनों से भी चुदता रहा। अरे भाई तुम यार एडम भाई, एक जगह में लिखा है ये जिन थे, तो मोहम्मद इंसानों के अलावा जिनों से भी चुदता रहे यार। पहले अपने कजन से चुदा, फिर अपने चचा से चुदा, अस्तगफिरुल्लाह, फिर जिन्नों से चुदा। अस्तगफिरुल्लाह भाई, रह क्या गया? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिर ये लोग मेरा चैनल बंद न कराए तो और क्या करें यार साले। इनके पास जवाब तो है नहीं। भाई रुक जाओ एडम भाई, रुक जाओ भाई, जवाब सुन लिया भाई आपने? हाँ, मैंने सुन लिया, बट भाई आई वाज ओके भाई, मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता था, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं ना, तो आप ये तो न्यूज चैनल में देख रहे होंगे किस तरह से द न्यूज चैनल वाले भी एक तरह का डिफेंड नहीं करते हैं उसको, पूरा एकदम एक यार अभी तो पता है यार, अभी भी बोली जा रहा है वही, इतना कुछ बता यार अबे भाई ये सब कुछ है, ये सुना ही दिखा नहीं दे बंदे दुनिया ने। को, पता लग जाएगा। यही तो दिखा रहे हैं, और 5 साल की बात है सब सीधे हो जाएंगे, हमारे चैनल लोग सुनना शुरू करते हैं सब सीधे हो जाएंगे। 5 साल दे दे, सिर्फ 5 साल, ये सिर्फ मैंने आज से 2 महीने पहले कहना शुरू किया ये बात, 5 साल दे दो सब सीधे हो जाएंगे, अगर इनको हमारी ओके बातें ग्रेट, पता थैंक लग यू, वी कैन कैरी ऑन, बाय। ओके, यस सर। थैंक यू वेरी मच ब्रो आने के लिए। Yeah. भाई सिगरेट नहीं पियेंगे एक्स मूवमेंट ऑफ इंडिया तो जिएंगे कैसा भाई? नहीं मैंने सिगरेट छोड़ दिया, हाँ हाँ छोड़ दिया। देखो कौन आया भाई, आया आया डॉन आया 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 डॉन आया। वो बढ़िया। आपने पूरा नहीं बताया उसके बारे में, क्या वो सच है? हाँ जी, आपने औरत के भी बाल पकड़ के दुआ मांगनी है कि अल्लाह मियां मैं पनाह मांगता हूँ इस जानवर से या इस औरत से, इस औरत या इस जानवर के शर से। जी ये लिखा हुआ है। तो फिर तो उन्होंने लेडी की तो मतलब औकात ही पेट के बराबर कर दी ना। तो लेडी है कौन, सेक्स ऑब्जेक्ट के अलावा लेडी है क्या? लेडीज जस्ट सेक्स तो ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए वो जो महर देते हैं तो वो खरीद के लेके आते हैं फिर क्या? तो महर देना इसीलिए ना, सेक्स के लिए। आपको जो फर्स्ट डे की आप वलीमा खाती हैं किस वजह से खाती हैं? कि मैंने रात को अपनी बीवी की डिंग डोंग बजाई है, ये लो पकड़ो खाना। सीरियसली? और किस चीज का वलीमा है? मुझे वो तो कहते हैं आपको पता है गिफ्ट वलीमा, है। आपके 50% सेक्ट ऑफ इस्लाम कहते हैं कि वलीमे का खाना हलाल ही नहीं है जब तक आपने बजाई नहीं है। मैं 50% की बात इसलिए कर रहा हूं, मैं बड़ा नॉमिनल चीज ले रहा हूं, क्योंकि कुछ अहले चॉइस अभी आ जाएंगे, नहीं कहेंगे नहीं 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 एडम गलत कह रहा है, लिहाजा 50% की मैंने बात कर दी है। 50% कहते हैं हलाल ही नहीं है वलीमा देना जब तक आपने बीवी की बजाई नहीं है। जब होगी ठुकाई तब मिलेगी वलीमा की बधाई। हाँ सीरियसली? ये तो फिर उनका जो निकाह का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे आप पेट को खरीद के लेके आते हो वैसे आपने वाइफ भी खरीद के लेके आई, उसकी आपने लाइक वो पैसे दे के फिर हाँ महर वो देके तो खरीद के लाते हैं ना।
हाँ वो तो खरीदना ही हुआ है, और इतने सस्ते रेट में फिर खरीद के लेके आते हैं। तो इतनी औकात है औरत की, इतनी ही वो औकात है। वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे आसपास, मेरी तो शादी नहीं हुई, बट हमारे आसपास मेरे रिलेटिव्स में तो शादी हुई, बहुत कम रेट है फिर, अरे अगर मैं इस तरह से देखूं। देवी जी इतनी ही औकात है, इतनी ही इस्लाम औकात में है। इस्लाम में औरतों की यही औकात है। अच्छा, फर्स्ट स्ट्रीम में मचा दिए तुमने बाबा, 1800 अरे प्लस बाबा। लाइव व्यूअर्स। हाँ, हमको ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मुफ्ती मौलाना, एक नया मुन्ना भाई आ गया अभी मार्केट में, ऐसी। भाई ये आप लोग की देन है भाई, साहिल भाई आपने सपोर्ट किया, आदम भाई ने सपोर्ट किया, फैजू ने सपोर्ट किया, आप सब। मुन्ना भाई मेरी स्क्रीन दिखाएं जरा, ये दीदी की बात पूरी करें जरा। सुना अभी दाऊद की हदीस है 2160, ये बताती है इफ यू मैरी अ वुमन, अगर तुम एक औरत से शादी करो या और बाय अ स्लेव, या एक गुलाम खरीदो, he should say, ओ अल्लाह, अल्लाह मियां, आई आस्क यू फॉर द गुड इन हर, मैं तुमसे इसकी भलाई मांगता हूं, एंड इन द डिस्पोजिशन यू हैव गिवन हर, एंड आई टेक रेफ्यूज फ्रॉम यू फ्रॉम द इविल इन हर। औरत एक इविल है, इविल को क्या कहते हैं हिंदी में? एक गंदी चीज है, एक शैतानी चीज है, एक गंदी चीज है। एंड इन द डिस्पोजिशन यू गिवन हर, When he buys a camel, और जब वो ऊंट खरीदे तो भी उसके बाल पकड़ के बोले, he should take hold of the top of his hump, उसके जो हम्प है उसके ऊपर हाथ रख के बोले सेम चीज, ओ अल्लाह आई आस्क यू फॉर द गुड इन हर। ये कोई हिंदी उर्दू है? एक सेकंड यार देखने दो, उर्दू है। इसलिए तो लाइक जब उनका फर्स्ट रात होती है तो दुआ करनी पड़ती है ना, तो ये दुआ है क्या? दो नफल भी पढ़ने पड़ते हैं, मैंने पढ़े हुए हैं। तुम में से कोई भी जब किसी और से निकाह करे या कोई खातम खरीदे दुआ पढ़े, क्या पढ़े? ए अल्लाह, मैं तुझसे इसकी भलाई और इसकी जबलियत और इसकी तबीयत का ख्वास्तगार हूं, खैर ख्वाही ने तौहीद की है इसके शर से, और इसकी जबलियत और तबीयत में तेजी से वदियत से शर से पनाह मांगता हूं। औरत एक शैतान है, और जब कोई ऊंट खरीदे तो भी इसके कोहान की चोटी पकड़े, कोहान के बाल पकड़े और यही दुआ पढ़े। अबू दाऊद कहते हैं, अबू अब्दुल्ला सईद ने इतना इजाफा किया है, फिर इसकी पिशानी पकड़े और औरत या खादम में बरकत की दुआ करे। आए अल्लाह, तो इसमें तो फिर महिला को वो इंसान ही नहीं मानते ना, वो शैतान है फिर। इंसान ये तो मोहम्मद ने खुद कहा, औरत बढ़ती है शैतान के रूप में और औरत आती है शैतान के रूप में। तो औरत तो है शैतान। मोहम्मद औरत को देख के मोहम्मद का खड़ा हो जाता था, सॉरी नाउजुबिल्लाह, जज्बा इज़हार, तो वो अपनी बीवी के पास चला जाता था डिंग डोंग करने, फिर बाहर आके कहता था औरत शैतान है। ये मैंने कई दफा दिखाई हुई है। अगर 1400 साल वापस जाना है तो मैं कैसे जाऊं? टाइम मशीन बना लें बस। टाइम मशीन में मैं ना उनको ही समझा के आती नया बुराक बनाना पड़ेगा। नया बुराक लाना पड़ेगा। वो नबी क्या, सीरियसली इतना ज्यादा? मैं इसके बारे में सोच रही थी, मुझे लगा शायद ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ फेक वेक हो, मुझे ये मिला तो इसलिए आपसे कंफर्म किया है। असल में मैं आपको बताता हूँ, ये शेर बना हुआ ना एक, कि तुझे देख के खड़ा हो जाता है मेरा, तो मोहम्मद ने अगला शेर नहीं सुना था, अगला मिसरा नहीं सुना था, जज्बा ईसार। तो जज्बा ईसार उसने नहीं सुना था, वो सिर्फ पहले मिसरे तक रहा था। ये प्रॉब्लम है मोहम्मद के साथ। उसने तो एक तो खुद भी इतना गलत काम किया, उसके बाद पूरी उम्मत को भी गलत पे लगा दिया, और अपनी जो आधी आबादी है लाइक लेडीज का, उनको तो इंसान तक ही, मतलब इंसान ही है ही नहीं उनके हिसाब से। तो औरत और क्या है जी? औरत है क्या? सेक्स ऑब्जेक्ट है, सेक्स करो बाद में बाय बाय। कुरान कहता है कि जैद को अब इस औरत की जरूरत नहीं रही। क्या मतलब जरूरत नहीं रही? इसलिए जैद मतलब तलाक दे दे, मोहम्मद ले लेगा। तो यानी जरूरत कहां तक है? सेक्स तक। और क्या जरूरत? हाँ, मतलब मन भर गया तो उसके बाद फिर टाटा बाय बाय। इसके अलावा भी हदीस में जो हलाले वाली शादी नहीं की अभी तक, इसके अलावा भी हलाले वाली जो हदीस है, हलाला इन द सेंस के, तो वो जो बीवी थी उसको अपने पहले शौहर के पास जाना था, तो ये वाले शौहर ने उसको मार मार के लाल पीला कर दिया था। तो वहां भी तो रसूलुल्लाह ने, हाँ, नीला और हरा, तो वहां भी रसूलुल्लाह ने यही कहा था कि जब तक ये वाला मर्द जो है तुमको अच्छे से रगड़ ना दे, चख ना ले, तो तब तक तुम पहले वाली के पास नहीं जा सकते। साहिल भाई, उस मर्द ने क्या कहा था? मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूं। सर ये हदीस के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज है, मैं इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूं।
क्या मतलब है यार, औरत की ये औकात है तुम लोगों के दरमियान। मोहम्मद को बोल रहा है, मैं इसको तो चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। BDSM क्या ये बात वाला मैंने है? कोई आपकी सीन होगा। स्ट्रीम से सुना था, ये मैंने ना आपकी स्ट्रीम से सुना था, मुझे लगा पर्सनलाइज वो एक को बोला है, बट यहाँ तो पूरा का पूरा जितनी लेडीज हैं उनको ये चीज लाइक पेट से कंपेयर किया, शैतान शैतान बना के रखा है। इंसान तो है ही नहीं किसी एंगल से भी। ये तो अगर मुझे ये चीजें पहले पता चलती तो मैं तो बचपन में ही फिर छोड़ देती। मुझे एक ही चीज अच्छी नहीं लगी, वो आयशा और मोहम्मद की एज और इनका जो मार काट है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा तो मैंने वो इतना ही पढ़ के छोड़ा, ये चीजें मुझे नहीं पता थी। और अब मैं पढ़ रही हूँ और वहां पे अलग अलग चीजें निकल रही हैं।